A very good morning, dear students, as we are going through the chapter number 5, that is more on MS PowerPoint 2010. So today we are going to learn how we can insert a picture from a file. So students, if we have created some pictures or we have downloaded some pictures from the internet and we want to insert those pictures in our presentation, so let's see how we can insert those pictures in our presentation. Okay, so there are some steps that we have to follow. First step is select the insert tab. Okay, we have to select the insert tab. Okay, now second step is we have to go in images group. If you are doing the practical in 2010 software, so you have to go in images group, but as we have already know that we are doing the practical in 2007 software, so in this software we will go in the illustration group. Okay, so then when we will go in the illustration group, we have to click on the picture command. हमें किस में click करना है? Picture command में click करना है. Okay, now the insert picture dialog box will appear. So this is our insert picture dialog box. ये क्या है हमारा? Insert picture dialog box है. Okay, now third step is select the desired image file and click on the insert to add your slide. So हमें यहाँ से किसी भी एक picture को select करना है. Okay, suppose I have selected this picture. Now we have to click on the insert tab. Okay, हमें किस में click करना है? Insert tab में click करना है. Insert. Okay, now the selected picture gets inserted in the slide. Now the next thing is viewing a presentation. So students, we have different types of views. By those views we can view our presentation in different formats. Okay, हम अपनी presentation को different formats में view कर सकते हैं. Okay, so first is normal view. So normal view is a by default view. ठीक है, नॉर्मल व्यू क्या है हमारा? एक बाय डिफॉल्ट व्यू है. दिस इज अवर नॉर्मल व्यू. ये कौन सी व्यू है हमारी? नॉर्मल व्यू है. सो व्हेनेवर वी आर क्रिएटिंग और वी आर स्टार्टिंग अवर प्रेजेंटेशन, सो हम किस में हम अपनी प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करते हैं, क्रिएट करते हैं, एडिट करते हैं? एक नॉर्मल व्यू में. ओके, सो जब भी हम अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं तो हमें कौन सा व्यू शो होता है? नॉर्मल व्यू शो होता है. और इस नॉर्मल व्यू में हम अपनी स्लाइड्स को क्रिएट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं. ओके, सो दिस इज अवर स्लाइड एरिया. इसे कहते हैं हम अपना स्लाइड एरिया. एंड दिस इज अवर आउटलाइन एंड स्लाइड्स पेन. ओके, यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन है आउटलाइन पेन का एंड फर्स्ट वन इज स्लाइड पेन. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास टू ऑप्शंस होते हैं, स्लाइड पेन एंड आउटलाइन पेन. तो इस एरिया को हम कहते हैं outline and slides pane. Okay, and the third thing is notes pane. So ये हमारा होता है notes pane. यहाँ पे आप कोई भी notes अपने add कर सकते हैं. Okay, so different slides के लिए हम different notes add कर सकते हैं. Okay, so there are different types of views. So how we can change our view? We have to firstly go into the view tab. हमें किस में जाना होगा? view tab में. Okay, so here you can see in presentations view group there are different types of views. Normal view, slide sorter view, notes page, slideshow view. Okay, और आप यहाँ से भी अपनी views को change कर सकते हैं, but there are only 3 views. यहाँ पे सिर्फ आपको 3 views ही show होंगी. Normal view, slide sorter view and third one is slideshow view. Okay, and there is one thing also, that is outline view. ये हम होती है हमारी outline view. Okay, so in outline view we can change or we can edit the text. Okay, so whatever we will write in a slide, ठीक है, हम slide में जो भी लिखेंगे वो हमारा किस में शो होगा? beside the current slide icon. हमारी जो current slide icon है उसके बगल में उसे वो एडिट्स, वो राइटिंग वर्ड्स शो होंगे. ओके, सो हम यहाँ पे भी टाइप कर सकते हैं हेलो दिस इज माय फर्स्ट प्रेजेंटेशन. ओके,
सो हम यहाँ पे भी टाइप कर सकते हैं और ये हमारी स्लाइड्स में भी अपेयर होगा। ओके, और अगर हम अपने स्लाइड्स में टाइप करेंगे तो ये हमारी करंट स्लाइड के बिसाइड में शो होगा। ओके, नाउ द नेक्स्ट व्यू इज स्लाइड शॉर्टर व्यू। ओके, सो इट इज ऑल्सो नोन एज मिनिएचर व्यू। इसे हम एक मिनिएचर व्यू भी कहते हैं बिकॉज इन दिस व्यू वी कैन see all our slides in a small size and it is also allows to change their order. So इसे हम क्या कहते हैं, मिनिएचर व्यू। मिनिएचर व्यू इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हमारी सारी स्लाइड्स को एक ही व्यू में शो करता है, ठीक है, और स्मॉल साइज में शो करता है। तो मिनिएचर व्यू का मतलब होता है स्मॉल साइजेस, ठीक है। तो हमारी जितनी भी स्लाइड्स होती है, नंबर ऑफ स्लाइड्स होती हैं, वो हमें सेम व्यू में दिखाता है और हमें जितनी भी स्लाइड्स हमने इंक्लूड करी होती है अपनी प्रेजेंटेशन, वो सारी स्लाइड्स हमें एक ही व्यू में शो करता है। ओके, और हम इसमें अपने स्लाइड्स के ऑर्डर को भी चेंज कर सकते हैं। सो हम अपनी जो स्लाइड्स के ऑर्डर को हम चेंज कर सकते हैं, वो तो या तो नॉर्मल व्यू में चेंज कर सकते हैं या फिर स्लाइड शॉर्टर व्यू में चेंज कर सकते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट व्यू इज स्लाइड शो व्यू। सो इन स्लाइड शो व्यू दिस व्यू इज यूज्ड टू डिलीवर अवर प्रेजेंटेशन टू अवर ऑडियंस। सो ये इस व्यू का हम कब यूज करते हैं, अपनी प्रेजेंटेशन को डिलीवर करने के लिए। ओके, सो इस स्लाइड में हमारा जो व्यू होता है वो फुल स्क्रीन में होता है एंड जैसे ही हमारी प्रेजेंटेशन कंप्लीट हो जाती है तो इसे हमें बैक करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, एस्केप की। ओके, सो दिस इज अवर एस्केप की। तो जैसे ही हमने एस्केप की एंटर करा तो हम दोबारा से अपने प्रीवियस व्यू में आ गए। ओके, सो हमारा प्रीवियस व्यू क्या था, स्लाइड शॉर्टर व्यू। There is one more view that is reading view. So in reading view it's used when you want to view a presentation not in full screen but in a window with simple controls that make the presentation easy to review. So reading view एक ऐसा व्यू होता है जिसमें हमारा जो प्रेजेंटेशन होता है वो फुल स्क्रीन में तो नहीं प्रेजेंट करता है बट एक ऐसी विंडो में प्रेजेंट करता है जिसमें हम इजीली अपने प्रेजेंटेशन को रीड कर सकते हैं, ठीक है, उसे इजीली रिव्यू कर सकते हैं। सो यहाँ पे द रिबन एंड द स्लाइड आउटलाइन पेन आर नॉट विजिबल। सो हमारा जो रीडिंग व्यू होता है उसमें हमारा रिबन और स्लाइड्स आउटलाइन पेन व्यू नहीं होता है, ठीक है, वो विजिबल नहीं होता है। और हमारी सिस्टम में जैसे कि मैंने आपको दिखाया था कि 3 सिंबल्स थे, ठीक है, 3 आइकन्स थे जिसमें हम एक नॉर्मल व्यू पे जा सकते थे, स्लाइड शॉर्टर में जा सकते थे एंड थर्ड वन इज स्लाइड शो में। ओके, सो यहाँ पे एक ऑप्शन आया है बुक के सिंबल का, बुक के आइकन का। ओके, सो इस आइकन में जब जाते हैं तो हम कौन सा व्यू ओपन करते हैं, रीडिंग व्यू। ओके, सो इन 2007 सॉफ्टवेयर इट इज नॉट अवेलेबल, सो दैट्स व्हाई आई एम शोइंग यू इन बुक। ओके, इसलिए मैं आपको बुक में दिखा रही हूँ कि यहाँ पे कौन सा एक आइकन बना हुआ है, बुक का आइकन बना है जिसके थ्रू आप किस में जा सकते हैं, रीडिंग व्यू में जा सकते हैं। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, नाउ अवर चैप्टर इज completed. So today you have to do 2 question answers in your notebook. So first of all write down today's date and question number 4th, that is describe the different views available in PowerPoint. So first one is normal view. It shows the current slide, the outline and the notes pane box. In this view we can edit and create our slides and normal view is a default view. So normal view क्या है, हमारा एक default view है। इस नॉर्मल व्यू में हमें करंट स्लाइड शो होती है, आउटलाइन और नोट्स पेन बॉक्स शो होता है। ओके, और नॉर्मल व्यू में हम अपनी स्लाइड्स को एडिट कर सकते हैं और क्रिएट कर सकते हैं। सेकेंड इज आउटलाइन व्यू. We can also view our presentation in outline view. In this view, we can edit our text and whatever we write in a slide, it also shows beside that current slide. So हम अपनी presentation को outline view में भी view कर सकते हैं और इस view में हम अपने किसी भी slides के text को edit कर सकते हैं और जो भी हम
टेक्स्ट राइट करेंगे अपनी स्लाइड में वो हमारी करंट स्लाइड के बिसाइड में भी शो होगा. ओके, नाउ थर्ड वन इज स्लाइड शॉर्टर व्यू. It is also known as miniature view because in this view we can see our all slides in a small size and it also allows to change their order. So हम अपनी slide shorter view को miniature view भी कहते हैं क्योंकि हम इसमें अपनी सारी slides को देख सकते हैं एक small size में. ओके, और ये हमें अलाउ करता है उसके ऑर्डर को चेंज करने के लिए. मीन्स स्लाइड्स के ऑर्डर को चेंज करने के लिए हमें स्लाइड शॉर्टर अलाउ करता है. फोर्थ वन इज स्लाइड शो व्यू. दिस व्यू इज यूज्ड टू डिलीवर आवर प्रेजेंटेशन टू आवर ऑडियंस. इन दिस व्यू आवर स्लाइड्स इन अ फुल स्क्रीन. सो हमारी जो स्लाइड्स होते हैं वो किस में शो होते हैं? फुल स्क्रीन में शो होते हैं. और हम इसे कब यूज करते हैं? जब हमें अपनी प्रेजेंटेशन को डिलीवर करना होता है अपने ऑडियंस तक. ठीक है. फिफ्थ वन इज रीडिंग व्यू. इट इज यूज्ड व्हेन वी वांट टू व्यू अ प्रेजेंटेशन नॉट इन फुल स्क्रीन बट इन अ विंडो विथ सिंपल कंट्रोल्स दैट मेक द प्रेजेंटेशन easy to review. Now question number 5 is how can you insert a picture from a file? हम किसी फाइल में से पिक्चर को कैसे इंसर्ट कर सकते हैं? स्टेप 1 इज सेलेक्ट द इंसर्ट टैब. हमें इंसर्ट टैब को सेलेक्ट करना होगा. स्टेप 2 इन द इमेजेस ग्रुप इन 2010 एंड इलस्ट्रेशन ग्रुप इन 2007. हमें 2007 में इलस्ट्रेशन ग्रुप में जाना है और 2010 के सॉफ्टवेयर में इमेजेस ग्रुप में जाना है. ओके, देन क्लिक ऑन दी पिक्चर कमांड. हमें पिक्चर कमांड पे क्लिक करना है. द इंसर्ट पिक्चर डायलॉग बॉक्स अपीयर्स. हमारे पास एक इंसर्ट पिक्चर डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा. स्टेप 3 इज सेलेक्ट द डिजायर्ड इमेज फाइल एंड क्लिक ऑन इंसर्ट टू एड इट to your slide. The selected picture gets inserted in the slide. So dear students, today you have to do these 2 question answers in your notebook. Further exercise of this chapter we will discuss in the next class. Thank you. Have a good day.